Good morning students, this is Naresh Srivastava, your biology teacher. I think आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. In the last class we have studied about the structure of flower and we have discussed the different parts of flower and their role in the reproduction. Today we will discuss about the microsporogenesis, that is formation of male gametophyte. Now you can ask, what is gametophyte? टर्म से ही क्लियर है. Gametophyte, it is made up of two words, gamete and phyte. The term gamete represents a haploid sex cell, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, and the phyta means plant. So we can say the plant body that bears the gamete is called as gametophyte. यहाँ हम बात कर रहे हैं मेल gametophyte की. That means the plant body that bears the male gamete is called as male gametophyte. In the flowering plant, the male gametophyte is pollen grain. अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो pollen grain को ही male gamete समझते हैं, जबकि pollen grain is the male gametophyte, not the male gamete. So what is microsporogenesis? The development of microspore, that is male gametophyte, from the microspore mother cell is called as microsporogenesis. और बहुत सिंपल वे में हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि pollen grain का formation in the flowering plant, the formation of pollen grain is called as microsporogenesis. Students, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था each anther is consist of two lobes and each lobe is consist of two microsporangia. That means an anther is consist of four microsporangia. And then we have studied different layers अराउंड द माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें बाहर से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, देन टैप्टम, और टैप्टम के अंदर बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू होता है. द स्पोरोजीनस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पोर मदर सेल्स, और यू कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. In the microsporogenesis, first of all, the pollen mother cell, or you can say microspore mother cell, undergoes meiosis. And as you know, the meiosis occurs in two steps, the meiosis first and meiosis second. Meiosis first के through pollen mother cell से दो cells बनती हैं. Then again by the meiosis second, four cells का formation होता है, and these are haploid cells. All these cells, मतलब ये चारों सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं और स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं. आफ्टर सम टाइम जब माइक्रोस्पोर टेट्राड ड्राई हो जाता है तब प्रत्येक माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं. फिर इनसाइड द माइक्रोस्पोर एन अनइक्वल सेल डिवीजन अकर्स, सो दैट इनसाइड द माइक्रोस्पोर, दैट इज pollen grain, a large vegetative cell and a small generative cell forms. आपको बता दें, फ्यूचर में चलकर यही वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और जनरेटिव सेल से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. माइक्रोस्पोर्स वैसे तो कई सारे शेप्स के होते हैं, बट जनरली दे आर स्फेरिकल एंड देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 25 to 50 माइक्रोमीटर इन देयर डायमीटर. नाउ कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain. The pollen grain has a prominent two-layered wall. इसमें जो आउटर लेयर होती है ये हार्ड स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इसे एक्सिन कहते हैं. द स्पोरोपोलिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल.
so it can withstand high temperature and strong acid and alkali. That means कि ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को रेजिस्ट कर सकता है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि अभी आपने जाना कि स्पोरोपोलिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिस पर ना ही किसी एसिड का, ना ही किसी एल्कली का, ना ही किसी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। शायद इसीलिए पॉलन ग्रेन जो है ये फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है, एंड द रीज़न इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। Exin is not a continuous layer due to presence of germ pores on their surface. Actually, जो पॉलन ग्रेन है इस पर जगह जगह पर जर्म पोर्स पाए जाते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन या एक्सिन एब्सेंट होती है। आगे चलकर इसी जर्म पोर्स से पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस होता है। Inside the exin there is present a continuous layer made up of pectin and cellulose and is called intin. Inside the intin there is present the plasma membrane surrounding the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is large and the generative cell is small and float in the cytoplasm of the vegetative cell. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक कंप्लीट डेवलप्ड पॉलन ग्रेन में एक लार्ज वेजिटेटिव सेल होती है और एक स्मॉल जनरेटिव सेल होती है। यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है, अबाउट मोर देन 60% ऑफ प्लांट्स, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो पॉलन ग्रेन का सेड ऑफ होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है। मीन्स उसमें एक जनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। In the remaining plant species, the set off of pollen grain occurs at 3 cell stage. अब आप कहेंगे सर ये 3 सेल कैसे हो गए? The first one is vegetative cell and the generative cell divide into 2 male gamete, so that वहाँ पर 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। पॉलन एलर्जी, सबसे पहले तो हमें जान लेना ज़रूरी है कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी हमारे ही इम्यून सिस्टम का एक फंक्शन होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कुछ अननोन फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदायक हो चाहे ना हो। कुछ लोगों में पॉलन ग्रेन्स के अगेंस्ट भी एलर्जीज होती हैं। कुछ लोगों में इसकी वजह से सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ऐसा पाया गया है फॉर एन इंस्टेंस द पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, जो कि भारत में एज अ कंटामिनेंट आया था विद द इम्पॉर्टेंट वीट। इसका जो पॉलन ग्रेन है ये बहुत ही डेंजरस होता है एंड इट कॉज सीवियर एलर्जीज टू द डिफरेंट पर्सन्स। Because the pollen grains are rich in nutrients, so they are also used as food supplement. वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में लिया जाता है। इन नाउ डेज
Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses. इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा इसके ज़्यादा यूज़ पर अब बैन लग चुका है। शेड ऑफ के बाद पॉलन ग्रेन को पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचना ज़रूरी होता है ताकि फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके, नहीं तो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है एंड दे गेट डाई। डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ हद तक ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ प्लांट्स की बात करें तो राइस, वीट, इनके पॉलन ग्रेन 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं। अगर इतनी देर में इनका पॉलिनेशन नहीं होता है तो ये बेकार हो जाते हैं। कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे रोजेसी, लिग्यूमिनोसी और सोलनेसी, इनके पॉलन ग्रेन्स कुछ मंथ्स के लिए वायबल रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। तो अगर पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसके लिए जो मेथड बनाया गया है दैट इज़ कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। इन दिस मेथड द पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन at -196 degree C in the pollen bank. In this table you can see the pollen grain of different plants can be stored at the different temperature for a long period. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।